Good morning, dear students. I, Muhammad Saad, again welcomes you in my YouTube channel. Today, in continuation of MCQ series, we will start with the subject pharmacology and the toxicology. Before starting the practice based MCQs, if you are new to our channel, kindly subscribe the channel so that you never miss any new updates. So without any further delay, let's start with our first question. Pharmacodynamics deals with the study of. Okay. The options are mechanism of action, interaction with the receptor, toxic effect of drugs, and metabolism of drugs. So what basically pharmacodynamic is? Okay, pharmacodynamic क्या है basically? What does the drug do to the body? Okay, drug body के साथ क्या करता है? Okay, whether it show desirable effect and whether it will show the undesirable effect. Okay, whatever the effect it will show, okay, depends on mechanism of action. Hence, the right answer is mechanism of action. Next question number 2. Pharmacokinetics deals with the study of. Options are rate of metabolism of drugs, rate of distribution of drugs, rate of absorption, distribution, metabolism, and excretion of drugs, and option D, rate of drug action. Just pause the video and think what is pharmacokinetic. Okay, pharmacokinetic basically is what does body do to the drug. Okay, body drug के साथ क्या करती है. Okay, whether it will absorb the drug, okay, whether it will distribute, whether the body will metabolize, and whether the body will excrete. Okay, depends, okay, on the site. So the correct answer is rate of absorption, distribution, metabolism, and excretion of drugs. Next, question number 3. Route of administration of drugs depends on. Options are physical and chemical properties, site of desired action, the time course of the action, and option D, all of the above. जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, वाई इट इज़ सो? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड है. साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, ओके, जो साइट ऑफ एक्शन है, वेदर इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट, बाय रेक्टल रूट और बाय पेरेंटल रूट, इट डिपेंड्स. ठीक है, और द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ द एक्शन. नेक्स्ट, द सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर. ओके, ऑप्शंस आर enhance the drug action, reduce the toxic effect of drugs. Option C, bypassing the first pass metabolism of drugs, and D, none of the above. Okay, first let us see what does it mean, the sublingual. Okay, sublingual means below the tongue. Okay, sublingual means below the tongue. Okay, क्या ऑप्शंस है, क्या आंसर हो सकता है? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक. आइदर इन्हांसिंग द ड्रग एक्शन. ओके, ड्रग एक्शन को इन्हांस करने के लिए सबलिंगुअल रूट दिया जाता है. नो, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग. अगर ड्रग के अंदर कोई टॉक्सिसिटी है तो उसको रिड्यूस करने के लिए सबलिंगुअल रूट यूज़ किया जाता है. नो. देन बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फेनामेना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म whereby the concentration of drugs, especially when administered orally,
is greatly reduced, okay, before it reaches to the systemic circulation, okay. systemic circulation तक पहुंचने से पहले, okay, जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ड्रग है वो रिड्यूस हो जाती है, okay. it is the fraction of drugs lost during the process of absorption, okay. during the process of absorption जो the amount of drug है, okay, it is lost which is generally related to liver and gut wall, okay, जो कि डिस्ट्रॉय होती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर में और गट के अंदर, ओके. लीवर इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है. समटाइम्स द ड्रग ओनली small of active drugs, okay. sometime only a small amount of active drugs emerges from the liver and the rest of the circulatory system, okay. जो एक्टिव ड्रग्स है वो लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है एंड लीवर में मेटाबोलाइज हो गई है एंड फाइनली वो क्या होंगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड हो जाती है ड्यू टू effect of bioavailability, okay. due to this bioavailability is greatly reduced, okay. hence the answer will be by passing the first pass metabolism, okay. next, large volume of fluids are administered by, options are intramuscular, subcutaneous, intravenous and none of the above. So the answer will be the intravenous, okay. large volume parenteral should be given by means of intravenous routes. Next question, question number 6, agonist is a drug that has, ठीक है, options are both affinity and intrinsic activity, B only affinity, C only intrinsic activity and D none of the above, okay. So the first we are going to see agonist. Agonist क्या है? Agonist is a chemical that binds to receptor and activate the receptor to produce biological effect, ठीक है. तो agonist drug is a drug that has both affinity and intrinsic activity, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, for a rapid and intense action which of these parenteral route is used, okay. रैपिड और इंटेंस एक्शन के लिए कौन से पेरेंटल रूट को यूज़ किया जाएगा? ऑप्शंस आर सबक्यूटेनियस, बी इंट्रामस्कुलर, सी इंट्रावेनस एंड डी ऑल ऑफ दीज, ओके. सबक्यूटेनियस में जो है रैपिड एक्शन के लिए, ओके. तो क्या हो सकता है आंसर? सबक्यूटेनियस भी नहीं हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज even after by taking below the tongue, okay, it will passes the first pass metabolism. intramuscular में देंगे हम तो first it will penetrated into the muscles, okay, and if we give in the veins, okay, it will pass the first pass metabolism. So what will be the answer? It is intravenous. Moving towards next question, the therapeutic index is a ratio of, options are the toxic dose and the therapeutic dose and the percentage response, the toxic dose and the percentage of toxic response and D none of these, okay. So therapeutic index क्या है? It is a quantitative measurement of the relative safety of drugs, ठीक है. hence what will be the answer? It is the toxic dose and the therapeutic dose. Next question, absorption of drugs depends on, options are particle size, solubility, pH, presence of food and all of these. Just pause your video and think what will be the answer. क्या हो सकता है? either absorption of drugs depends on, पार्टिकल साइज के ऊपर absorption of drugs डिपेंड है. yes, it is depend. the absorption of drugs depends on solubility, whether it is soluble in water or not, soluble in lipid or not. yes,
whether it is depends on pH. Yes, acidic drugs are absorbed mostly. ठीक है. Presence of food, if there is lots of food in the stomach in your body, then the absorption is definitely affected. Hence the correct answer is all of the above. Okay, next question. The transport of drug against concentration gradients takes place. Okay, transport of drugs against concentration gradient takes place by, options are active transport, B passive transport, C filtration, and D all of the above. What will be the answer? The transport of drug against concentration gradient. ठीक है. So the correct answer is active transport. The movement of ions or molecules across a cell membrane from lower concentration to a higher concentration against the concentration gradient. Hence the answer is active transport. Next, question number 11. Thalidomide, effective in insomnia, was discarded due to its following effect: A side effect, B idiosyncratic reaction, C teratogenic effect, and D resistance. Okay, what will be the answer? It is due to teratogenic effect. Okay, effective in insomnia was discarded. ठीक है, जो थैलिडोमाइन जो ड्रग्स है, इट इज़ इफेक्टिव इन इंसोम्निया. ओके, ड्यू टू इट्स teratogenic effect it is discarded. Next, question number 12. Action of acetylcholine on exocrine gland. Okay, action of acetylcholine on exocrine gland is A stimulatory, B inhibitory, C both, depends on nature of exocrine gland, and D none of the above. Options are, the correct answer is stimulatory effect of acetylcholine on exocrine gland. ओके, जो इफेक्ट है एसिटाइलकोलिन का एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वो क्या है? स्टिमुलेटरी. ओके, इट विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट, नंबर 13. नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड इन. ओके, नियोस्टिग्मिन का क्या यूज़ है? ऑप्शंस आर यूरिनरी रिटेंशन, बी मास्थेनिया ग्रेविस, सी ग्लोकोमा, एंड डी ऑल ऑफ दीज. जस्ट पॉज योर वीडियो एंड थिंक. ओके, नियोस्टिग्मिन का मेन यूज़ क्या है? आइदर इट इज़ यूज्ड इन यूरिनरी रिटेंशन. ओके, यूरिन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कि मास्थेनिया ग्रेविस क्या है? इज़ अ लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिसीज दैट लीड्स टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस. ओके, जो बॉडी के जितने भी स्केलेटल मसल्स है, पर्टिकुलरली मसल्स ऑफ आइज एंड द फेस, ओके, उसके ऊपर जो है अफेक्ट करता है. लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिसीज दैट लीड्स टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस. ओके, जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर जो मसल्स होते हैं, ओके, वो लूज हो जाते हैं. ठीक है. ओके, और जो स्किन है वो हमारी थोड़ा से लटकी हुई हमें दिखती है. ओके, मोस्ट ऑफ इन द केसेस ऑफ ओल्ड पीपल, जो बूढ़ा शख्स होते हैं, बूढ़ा आदमी होते हैं, उनकी जो स्किन जो है लटकी हुई रहती है. ओके, इट इज़ ड्यू टू मास्थेनिया ग्रेविस. ओके, ग्लोकोमा किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस विच रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड कॉज विजन लॉस. ओके, ग्लोकोमा किसको कहते हैं हम? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज ऑफ आई की डिसीज है. ओके, जिसमें जो ऑप्टिक नर्व है, ओके, उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? हमारा विजन जो है लॉस हो जाता है. ओके, so the neostigmine is mainly used in Myasthenia gravis. Next,
क्वेश्चन नंबर 14. Antimuscarinic agent produces in eye. Okay. Options are mydriasis, B. cycloplegia, C. mydriasis and cycloplegia, and D. meiosis. Okay. तो mydriasis क्या है? mydriasis is the dilation of pupil. Okay, आँखों का बड़ा हो जाना. ठीक है. while cycloplegia किसको कहेंगे हम? पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एकोमोडेशन. ठीक है. जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ओके, उनमें जो है पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन ऑफ आई किसको कहेंगे हम? चेंजेस इन ऑप्टिकल पावर टू मेंटेन क्लियर इमेज. ओके, जो हमारे जो आइज़ होती है उसमें भी जो है एक ऑप्टिकल पावर होता है. ओके, किसी भी इमेज को क्लियर देखने के लिए. ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन जो है वो हमारा सेंस चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइक्लोप्लेजिया. ओके, meiosis मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pupils. ओके, तो एंटीमस्कैरिनिक एजेंट प्रोड्यूसेस इन आई. ऑप्शंस इज बोथ मिड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. जनरल एनास्थेटिक इज यूजफुल बिकॉज इट कॉज. ऑप्शंस आर एक्सेलेंट एनाल्जेसिया, B. unconsciousness, C. muscle relaxation and unconsciousness, and D. abolition of reflexes. ठीक है. तो जनरल एनास्थेशिया क्या कहते हैं? इट इंड्यूसेस द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बींग्स हेंस एंड रिलैक्सेस द मसल्स. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मसल रिलैक्सेशन एंड अनकॉन्शियसनेस. नेक्स्ट, the most common adverse effect of NSAID is. Options are liver toxicity, B. addiction, C. hematological disorder, and D. gastric upset. So सबसे कॉमन साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का क्या है? इट इज़ द गैस्ट्रिक अपसेट. ओके, गैस्ट्रिक अपसेट बोले तो स्टमक में पेन होता है, वहाँ पेट दुखता है, तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक अपसेट. तो द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट. ओके, इनमें से कौन से एजेंट्स को गॉट के अंदर यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर ए. एलोप्यूरिनॉल, बी. कोडीन, सी. टेट्रासाइक्लिन, एंड डी. नन ऑफ दिस. ओके, फर्स्ट let us discuss about GOT. What is GOT? GOT क्या है? GOT is a form of inflammatory arthritis characterized by recurrent attack of red, tender, hot and swollen joint. Okay, जो हमारे जो joints होते हैं बॉडी में, जितने भी joints हैं वहाँ पे जो है रेडनेस आ जाती है. ओके, वो ठीक हो जाता है और वहाँ पे हॉटनेस भी डेवलप होती है. ओके, छूने से हमको जो है गर्म लगता है और जो है सूजन आ जाती है, सोइलन जॉइंट्स. ओके, तो उसे हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम गॉट कहते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द कोडिन, नो, कोडिन इज द रॉन्ग आंसर. देन टेट्रासाइक्लिन, इट इज़ द एंटीबायोटिक. ओके, कोडिन इज नार्कोटिक. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज एलोप्यूरिनॉल. ओके, next, question number 18. Fortwin is a common brand name for. Options are paracetamol, B. pentazocine, C. fentanyl, and D. dextropropoxyphene. So Fortwin is a common brand name for pentazocine. Okay, next question, question number 19. Stametil is common brand name for. Options are trifluoropromazine, perfenazine, C. prochlorperazine, and D. furosemide. So the correct answer is prochlorperazine is the chemical name for stametil tablet. ठीक है. Next, question number 20. The most potent CNS stimulant among xanthine base is. Okay, क्या आंसर हो सकता है? थियोफाइलिन, ब्रोमीन, कैफीन और ऑल ऑफ दीज. द मोस्ट कॉमन CNS स्टिमुलेंट. ओके, थियोफाइलिन किस में देते हैं?
जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस जिनको होती है अस्थमा वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द मोस्ट पोटेंट CNS स्टिमुलेंट अमंग जैंथीन बेस, ओके। जैंथीन जो बेस है उसमें क्या आता है, ओनली द कैफीन इज इंक्लूडेड, हेंस द आंसर इज कैफीन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगॉक्सिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। ऑप्शंस आर हाइपरटेंशन, बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सी एडिमा, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो डिगॉक्सिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डिगॉक्सिन इनमें से कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, आइदर इन हाइपरटेंशन, आइदर इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आइदर इन एडिमा, और डी ऑल ऑफ द अबव। जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक, इट इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ओके। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इन विच ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड, ठीक है। जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें जो है प्रेशर डेवलप होता है, परसिस्टेंटली एलिवेटेड होता है वो, ठीक है। अब CHF के बारे में अगर हम बात करते हैं तो CHF क्या है, इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर इज व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, ओके। जो हमारा हार्ट है वो इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, ओके। CHF किसको कहेंगे हम, जब हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की जो नीड है, ओके, ब्लड कंजम्पशन की, वो ख़त्म हो जाती है, वो रुक जाती है। तो ड्यू टू दिस ए सीवियर पेन इज डेवलप इन द चेस्ट, उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। एडिमा इज ड्यू टू नॉट प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर किडनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मिनॉक्सिडिल इज इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन ड्यू टू, ओके। मिनॉक्सिडिल जो है इफेक्टिव है हाइपरटेंशन में, क्यों। द ऑप्शंस आर वैसोडाइलेटर एक्शन, इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सी ब्लॉकेड ऑफ कैल्शियम चैनल, एंड डी ब्लॉकेड ऑफ गैंग्लियन। द आंसर इज ड्यू टू इट्स वैसोडाइलेशन एक्शन, ठीक है। मिनॉक्सिडिल इज इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन, ओके। वैसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको जो है डायलेट कर देता है मिनॉक्सिडिल, इसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन में इट इज़ इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एम्लोडेपिन लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय, ऑप्शंस आर इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स, बी इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सी ब्लॉकिंग नॉरएपिनेफ्रिन reuptake, and D all of the above, okay. So the answer is inhibition of calcium influx. Next question, question number 24, कैप्टोप्रिल लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय, कैप्टोप्रिल ब्लड प्रेशर को लोअर करता है कैसे, दीज आर द ऑप्शंस, ओके। जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक what will be the correct answer. The correct answer is inhibition of enzyme peptidyl dipeptidase, okay. Captopril lowers blood pressure by inhibition of enzyme peptidyl dipeptidase. Next question, question number 25, which of these vitamin is essential for coagulation of blood, okay. इनमें से कौन से विटामिन जो है ब्लड कोएगुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और बेनिफिशियल है, ठीक है। ऑप्शंस इज फॉलिक एसिड, निकोटेनिक एसिड, विटामिन B1 एंड विटामिन K. जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक व्हाट विल बी द आंसर, डेफिनेटली इट इज विटामिन K, ठीक है। विटामिन के और केमिकल नेम क्या है, मेनाडायोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरथायजाइड causes diuresis due to, options are inhibition of enzyme carbonic anhydrase, inhibition of reabsorption of sodium and chloride, inhibition of SH enzyme, or all of the above. तो क्या हो सकता है आंसर इसका,
डेफिनेटली इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. क्लोरोथायोजाइड कॉजेज डायूरेसिस. क्लोरोथायोजाइड की वजह से जो डायूरेसिस होता है तो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयंस की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स ऑन. फ्यूरोसेमाइड किस पर एक्ट करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल और नन ऑफ द अबव. तो फ्यूरोसेमाइड किस पे एक्ट करता है? इट विल एक्ट ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है. नेक्स्ट 28. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मिक्सचर ऑफ बोथ और नन ऑफ द अबव. ओके. तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय. ऑप्शंस आर साल्मोनेला टाइफी, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्टैफिलोकोकस विडेंस और नन ऑफ दीज. ओके. तो टाइफाइड क्या है? एज द नेम इंडिकेट, टाइफाइड. ओके. जो कॉजेटिव एजेंट है टाइफाइड के लिए क्या है? इट इज साल्मोनेला टाइफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर निमोनिया इज. ऑप्शंस आर वाइब्रियो कोलेरा, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. ओके. क्या आंसर है? निमोनिया किसकी वजह से होता है? कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए? इट इज स्टैफिलोकोकस ऑरियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय. द बेसिक एंड नोन टू एवरीवन. इसका आंसर आई थिंक सभी को पता है. डेफिनेटली इट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. पेनिसिलिन एक्ट बाय. अब इसका आंसर हर किसी को पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो दीज आर द ऑप्शंस. इंटरफियरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल synthesis, interfering by protein synthesis, altering the permeability of cell membrane of organism, and D, all of the above. ये क्या हो सकता है इसका आंसर? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक. द आंसर इज interfering in bacterial cell wall synthesis. Next question, question number 33. The combination therapy is adopted in the treatment of tuberculosis. Okay, combination therapy जो tuberculosis में अडॉप्ट की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, क्या है वो? To increase the activity of each drug, okay, to increase the spectrum, to reduce the toxicity and to reduce the bacterial resistance. okay. टीबी के अंदर जो कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, क्यों दी जाती है? इट इज़ गिवन ड्यू टू रिड्यूस द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, द मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव इन. मेट्रोनिडाजोल किसके अंदर इफेक्टिव है? ऑप्शंस आर फिलारियासिस, एमेबिक डिसेंट्री, कैस्टोड इन्फेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस. ओके. मेट्रोनिडाजोल किसके अंदर इफेक्टिव है? इट इज़ इफेक्टिव इन एमोबिक डिसेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर यूज्ड टू. इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्यों यूज़ की जाती है? टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन और आइदर टू अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ स्टमक, टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑल ऑफ द अबव. इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्यों यूज़ की जाती है? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्राइड इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय. आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्राइड जो है कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? बाय मीन्स ऑफ सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट और नन ऑफ द अबव. ओके. तो आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्राइड जो है जनरली जो है हार्ट इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है. ओके. और इट इज़ जनरली गिवन बाय मीन्स ऑफ सबलिंगुअल रूट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ दीज रूट इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इन इमरजेंसी कंडीशन. इनमें से कौन से रूट को इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर में?
ऑप्शंस आर इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और none of these. Okay, so the correct answer is intravenous. ठीक है. Next question 38. The volume of injection should not exceed 10 ml in. Okay, जो इंजेक्शन का जो वॉल्यूम है वो 10 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑप्शंस आर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस. ठीक है. तो जो इंट्रावेनस जो फ्लूइड दिए जाते हैं उसकी जनरल क्वांटिटी क्या है, मेनली मोर देन 250 ml. ठीक है. और जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, ओके, इंजेक्टेबल्स, ओके, शुड नॉट एक्सीड 10 ml. द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 ml. तो क्या ऑप्शन हो सकता है फ्रॉम ए एंड बी? इट इज़ इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर में जो है 10 ml से ज़्यादा इंजेक्शन, 10 ml से ज़्यादा वॉल्यूम जो है हम इंजेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. फोकोमिलिया induced by thalidomide is. Phocomelia induced by thalidomide is teratogenic disease, allergic disease, idiosyncrasy disease और neoplastic disease. तो थैलिडोमाइड की वजह से क्या डेवलप होता है? ट्रेटोजेनिक इफेक्ट, ट्रेटोजेनिक डिसीजेस होती है ह्यूमंस के अंदर. ओके, फोकोमिलिया. ओके, एबनॉर्मल लिम्स, ओके, 4 लिम्स एंड 4 आर्म्स जो है उनमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगती है. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिसिटी. ठीक है. मॉन्स्टर लुकिंग अपीयरेंस शुड सीन इन दिस इफेक्ट. फोकोमिलिया जो है अगर किसी को हो जाता है, ओके, इफ़, तो उसके जो 4 लिम्स 4 आर्म्स है उसमें जो है डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, उसकी जो शेप चेंज हो जाती है. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ऑकर ड्यू टू. ठीक है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ऑकर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ओके, अथेरोस्क्लेरोसिस, सी इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल, एंड डी नन ऑफ द अबव. ठीक है. क्या आंसर हो सकता है इसका? इट इज़ ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. ऑल्सो these questions will be beneficial for you from the examination point of view, because this time MSBT will take MCQs based questions. ठीक है. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे. Okay, it is just for your practice. Okay, for any query or suggestion kindly contact me at the given number or WhatsApp. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू वेरी मच.